Hello everyone, welcome to today's video of PTE 79 plus series for reorders paragraphs। हम यहाँ पे वो reorders डिस्कस करते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा probability होती है पेपर में आने की। हमें कैसे पता चलता है? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर देते हैं ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस। वो हमें बताते हैं सर ये reorders आया था, ये reorder आया था। So this is how we could compile this list की। एंड अगर आपको इनके लॉजिक समझ आ गए तो you would be able to crack things very easily. So that's why we are getting started with this initiative जहाँ पे we discuss reorders, we discuss reading and writing filling the blanks, we discuss reading filling the blanks for PT because students को अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं तीन टॉपिक्स में आती है for getting 79 in reading and writing. Why I'm saying in writing? Those who have attended our lectures and know the correct scoring know it. But before getting started, a lot of congratulations to students जिन्होंने अपने target scores achieve किए हैं। नेहा शर्मा, रमनदीप, रोहित बांसल all have achieved their target scores, especially 79 plus. They have got 20 points for PR, and you can also get with our right strategies, methods, and our software. As you know that my name is Bhrat Brij. I have scored a perfect 90 in all the 10 criterias of PT. कैसे किए हैं? Using some simple strategies, tips and tricks. And अगर आप वो system follow करोगे जो हमने एक system बनाया Marvel PTE में, you can also score. So PTE की real scoring क्या होती है? सबसे ज़्यादा students को यही नहीं idea होता कि PTE में जो reading होती है कितने marks की होती है, reading के number कहाँ कहाँ से आते हैं, speaking read aloud से आते हैं, writing SWT से आते हैं, this is reading and listening के भी दो question type से आते हैं। ये बहुत कॉमन इन्फॉर्मेशन है, पर क्या रीडिंग स्कोर है, कितना रीडिंग स्कोर है, दिस इज अ सीक्रेट विच आवर स्टूडेंट्स नोज, दोज हु हैव टेकन ऑनलाइन कोचिंग फ्रॉम अस और इन आवर इंस्टीट्यूट वी टेल देम इन दिस डिटेल सो दैट दे अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड यूजिंग आवर strategy which is very simple, and in 30 seconds you will be able to get 100% marks. Yes, within 30 seconds you will be able to solve reorder paragraphs. बहुत ज़्यादा strange लगता है, but once you know our strategy you will see that it's very simple. And if you have to see the basics of reorder, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, यू कैन वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। आपको लास्ट में प्ले लिंक का यूआरएल मिल जाएगा सजेस्टेड वीडियोस में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। यू कैन वॉच दैट प्लेलिस्ट अगेन। So you have 2 minutes. Yes, you have just 2 minutes to solve your reorder paragraphs. उसमें आपको skim भी करना होता है, read भी करना होता है, arrange भी करने होते हैं, and then confirmation भी लेनी होती है कि जो आपने pairing की है वो सही है या नहीं है। Assume that Marvel PT is the center of the PT universe. This is sun. So what we are going to do is सबसे पहले हम independent line find out करते हैं। उसके बाद हमारी BS strategy है जो बहुत useful होती है। CO strategy हमने देखा है, लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम सीओ स्ट्रैटेजी से भी सिर्फ एक स्ट्रैटेजी से ही हम रीऑर्डर पैराग्राफ सॉल्व कर पाए थे। देन वी हैव कनेक्टर स्ट्रैटेजी, देन टीओ रूल। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज टीओ रूल, देन एबी रूल बहुत बार यूज होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल ऑफ देम इज एसओ स्ट्रैटेजी, एंड देन वी हैव सम रूल्स फॉर लास्ट सेंटेंस ऑल्सो। सो आपको ये 360 डिग्री या सोलर सिस्टम प्रोवाइड करता है मार्वल पीटी। जैसे ही आप ये स्ट्रैटेजीज को अंडरस्टैंड करते हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं या ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, दे नो all these strategies and they can apply and they can also score in their PT paper. Now we have two modes, exam mode and time mode. Exam mode वो questions जो exam में recurring होते हैं, time mode once you're used to things then you turn this mode on from here. So अब this is the today's topic. अगर आपको time mode या exam mode के बारे में डिटेल में जानना है, you can watch our first video again because that is a repetitive and बहुत सारे students कहते थे सर कि ये information हमें समझ आ गई है, so I have stopped including it, but you can watch the first video again. So this is today's reorder paragraph which you have to solve it, and it's one of the most difficult one which we have encountered till now. We are going to see how to solve. I am giving you again 30 seconds to skim this and your timer starts now. I will be coming back after 30 seconds, and अगर आपने ये video forward करनी है, you can forward the video.
ओके, सो आई एम बैक नाउ। सो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारी ये यहाँ पे कौन सी इंडिपेंडेंट लाइन है। सो लेट्स सी, इट इज़ नॉट इजी टू एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ जर्मन लिटरेचर। सो मीन्स आप जर्मन लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हो, बिकॉज इट डिडंट बिगिन टू हैव एनी मेजरेबल इम्पैक्ट। इंग्लिश कंपैरिजंस हैं फ्रेंच के साथ। सो क्या ये आपकी इंडिपेंडेंट लाइन हो सकती है जहाँ पे कंपैरिजंस हो रहे हो फर्स्ट लाइन में? द आंसर इज नो। देन इट वॉज परहैप्स द स्टॉर्म एंड स्ट्रेस मूवमेंट ऑफ द लेट 18th century। Perhaps शायद स्ट्रॉम और स्ट्रेस मूवमेंट है जो फर्स्ट और मोस्ट वाइड स्प्रेड अफेक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ यूरोप था। तो क्या ये हो सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि रेस्ट ऑफ यूरोप की बात हो रही है। पहले कहीं यूरोप इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद टीओ के बेसिस पे आप रेस्ट ऑफ यूरोप की बात कर सकते हो। एंड चीफ अमंग दोज वर एफिलिएटेड विद दिस मूवमेंट वाज गोथ। सो गोथ आपको एक आइडिया हो रहा होगा नेम से कि कुछ नेम है, प्रॉपर नाउन हो सकता है, पर क्या ये इंट्रोड्यूस हो चुका है टीओ के बेसिस पे? नहीं। सो दिस कैन नॉट बी योर इंडिपेंडेंट लाइन ऑल्सो। गोथ वाज अ पॉलीमैथ, अ मैन हुज इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपका गोथ की इंट्रोडक्शन चल रही है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। तो क्या ये इंडिपेंडेंट लाइन हो सकती है? यस, एज पर आर टीओ स्ट्रैटेजी दिस कैन बी योर इंडिपेंडेंट लाइन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन ऑल्सो। इट वॉज द एपिस्टोलरी नॉवल। एपिस्टोलरी मीन्स, ये एक बहुत ही हाई फाई वोकैब वर्ड है जो स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया होता है, बट एपिस्टोलरी इज कलेक्शन ऑफ लेटर्स। पुराने टाइम में, पुराने ज़माने में क्या होता था कि आपको लेटर्स आपको पब्लिश कर दी जाती थी। जब उनकी लेटर्स भेजते थे, नॉवल राइटर्स हैं वो अपने लेटर्स को भेजते थे एंड उनको एज अ लेटर की ही संग्रह को वो पब्लिश कर दिया जाता था विद टाइम। सो दैट इज एपिस्टोलरी नॉवल। सो अब आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे सॉरोज दैट हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट की बात हो रही है, पर हमने कहीं इम्पैक्ट डायरेक्टली हम नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि यहाँ पे नॉवल की बात हो रही है, जर्मन नॉवल की बात हो रही है थ्रू आउट यूरोप। यस, यहाँ पे अब आपको एक आइडिया लग रहा है, यूरोप और यूरोप, यहाँ पे ये दोनों कॉमन टॉपिक्स हैं एंड ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज। सो दिस इज नॉट ऑल्सो इंडिपेंडेंट सेंटेंस। तो हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस रहता है विच इज गोथ वाला, एंड वी हैव पुट दिस एज इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ओके, सो अब अगर आप ध्यान से देखिए, अब इसके साथ आपको पेयरिंग, आवर फोकस इज ऑन पेयरिंग फॉर रीऑर्डर्स पैराग्राफ्स। क्यों पेयरिंग पे फोकस है? यू कैन वॉच द फर्स्ट वीडियो अगेन ऑफ दिस सीरीज। प्लेलिस्ट का यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो। सो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम गोथ की बात कर रहे हैं जिसने बहुत सारे काम किए हैं, लाइक प्लेज भी लिखे हैं, फिक्शंस भी लिखी हैं, पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व था और साइंस में भी इन्वॉल्व था। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे उसके काम का टीओ के बेसिस पे, एसओ के बेसिस पे, आप देखिए यहाँ पे आप उसके काम की बात कर रहे हो, उससे काम से रिलेटेड कौन सी बात है? इट वाज द एपिस्टोलरी नॉवल। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे उस नॉवल की बात हो रही है। ये नॉवल किसने लिखा है? गोथ ने, कि जिसका सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट हुआ था, विच डिस्पाइट अपसेटिंग मैनी पीपल वॉज द फर्स्ट जर्मन नॉवल टू गेन रिकॉग्निशन थ्रू आउट यूरोप। अब आपने कंप्लीट यूरोप की बात कर दी है हमारे एसओ के बेसिस पे। यस, यू नो द आंसर नाउ। अगर हमने यहाँ पे थ्रू आउट यूरोप की बात की है तो उसके बाद हम यहाँ पे रेस्ट ऑफ यूरोप की भी बात कर सकते हैं, बिकॉज पहले आप पूरी की बात करोगे फिर एक्सेप्शन की बात करोगे। सो लेट्स सी, फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पुट दिस ओवर हियर वी हैव पुट इट एंड नाउ वी हैव सीन दैट कि यहाँ पे रेस्ट ऑफ यूरोप की बात हो रही है, यहाँ पे आपके गोथ की ही बात हो रही है। सो इट्स लाइक दीज आर रिलेटेड। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर यहाँ पे पहले गोथे था, यहाँ पे गोथ है, तो क्या हम दोनों इकट्ठे नहीं होने चाहिए थे? द आंसर इज नो। अगर हमारे आप टीओ स्ट्रैटेजी, एसओ स्ट्रैटेजी के बेसिस पे जाएं तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हो उसके नॉवल का, तो उसके बेसिस पे आपको पहले इसकी पेयर करना है, उसके बाद आपको उसका पेयर करना है। सेकेंड रीजन इज दिस, बिकॉज यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे थ्रू आउट यूरोप की बात हो रही है, उसके बाद आप रेस्ट की बात करोगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पुट दिस ओवर हियर इन द थर्ड एंड लास्ट में जो सेंटेंस बचा वो वैसे ही आपका लास्ट में जाता है, बट देयर लेट्स सी द लॉजिक्स बिहाइंड दिस आल्सो, बिकॉज यहाँ पे आपने ग्रेटेस्ट अफेक्ट, वाइड स्प्रेड अफेक्ट की बात कर दी है, राइट। उसके बाद अब आप इन्फ्लुएंस की बात कर सकते हो, बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हमने यहाँ पे बात की कि यार पहला जनरल नॉवल की इन्फ्लुएंस हुई यूरोप पे, उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि जो जर्मन लिटरेचर की इन्फ्लुएंस है इंग्लिश पे या फ्रेंच पे, वो इजिली मेजरेबल नहीं थी, बिकॉज पहला नॉवल इंट्रोड्यूस हुआ है, पहला नॉवल ही पॉपुलर हुआ, उससे पहले तो कोई इन्फ्लुएंस आप मेजर कर ही नहीं सकते। सो दिस इज अगेन द एसओ स्ट्रैटेजी विच
forces us or which tells us that we have to put it in the last. So this is the order which we have done. Now let's see if it's correct. If you see, yes, this order is correct. अब अगर आपने देखा हमारी SO strategy से, हमारी TO strategy से आप कितनी easily अपने reorders को solve कर पाए. The thing is this, अगर आपको strategy पता होगा, आपको अगर methods पता होगा, it will be easy for you to solve them. And अगर आपको ये strategies नहीं पता है, you are going to waste a lot of time. बहुत सारे students तो 2 minutes से greater time spend करते हैं reorders पे जो नहीं करने हैं. What they do is they start reading everything. You have to skim. You just have 2 minutes. Always remember that. In 2 minutes में first 30 to 60 seconds में आपको बहुत कुछ करना होता है. क्या क्या करना है? आपको content को skim करना है. You have to find an independent line. फिर आपको conclusion वाली line भी ढूंढनी होती है because the focus is on pairing. Next 1.5 minute to 1 minute जो रहते हैं उसमें आपको clues ढूंढने होते हैं. You have to find pointers. Pointers कौन से हो सकते हैं? Years, however, firstly, examples. You saw in this, हमने एक example, वो जो novel की बात हो रही है, that was an example. हमने उसी के basis पे pair किया because वो दोनों इकट्ठे आएंगे, पहले वो बात होगी और उसका example होगा. That was our TO strategy. Always remember friends, this is a trophy जो आपको जीतनी है. Which is this trophy? Your 79 plus scores in PTE, your 65 plus scores in PTE और 58 plus scores in PTE. अगर आप हमारी strategies को नहीं follow कर रहे हो या modify करते हो, sadly you are not going to win this trophy. But अगर आप follow कर रहे हो, implement कर रहे हो Marvel PT की strategies को Marvel PT के software पे, for sure you are going to win this trophy. And always remember, जितनी practice करोगे उतने ज़्यादा आपके reorders के logics clear होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके reading में marks boost होंगे. Practice is the key to crack PTE. And this is our phone number. If you have any questions or doubts, you can WhatsApp us at 8699121121. We are always there 24/7 to answer your queries, to solve your questions. Me and my team is available there. And do not forget to subscribe to our channel because हम ऐसी informational videos daily upload करते हैं. So always remember that. जैसे ही हमारी नई reorders की, reading की, writing filling the blanks की, या फिर grammar से related, pronunciation से related कोई भी video upload होगी, सबसे पहले अगर आपने subscribe किया हुआ है और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन किया हुआ है, यू विल बी एबल टू गेट टू दोज वीडियोस और आप अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हो. नॉलेज से यू विल बी एबल टू क्रैक पीटी. दैट्स ऑल फॉर नाउ. वी गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स.